स्टूडेंट्स एक बार फिर से वेलकम बैक। टिल नाउ वी हैव स्टार्टेड द जेनेटिक्स, फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स वी आर डिस्कसिंग। हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स को स्टार्ट किया है। इन मेंडेलियन जेनेटिक्स वी वर लर्निंग अबाउट द फैक्ट्स एंड द बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ द मेंडेलियन जेनेटिक्स। टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड मैनी ऑफ द टर्मिनोलॉजीज। हमने इन द प्रीवियस लेक्चर आई जस्ट डिस्कस द क्रॉसेस, द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस, back cross, reciprocal cross, test cross. Test cross was very important in that concept because test cross was is used to find out the unknown genotype of a known phenotype, and this is a very important question for your final examination as well as the नीट एग्जामिनेशन। और वो भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस का पता लगाया जाता है। बिकॉज माय डियर स्टूडेंट, इफ द trait is recessive, so always the recessive trait is the pure and pure homozygous. But if the trait is dominant, so that time this is difficult to find out whether the trait is homozygous or heterozygous. So on that situation we need to perform the test cross. That everything I just made you clear in the previous lecture. So today I am moving some more point about the मूविंग अहेड इन सम मोर पॉइंट अबाउट द मैंडेलिज्म, मैंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में। और आज के लेक्चर के बाद में विल स्टार्ट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक प्रोपोज्ड बाय द मैंडल। सो वी आर मूविंग फर्दर। Today I am just going to start with the techniques used by the Mendel for performing his world class hybridization experiment, world famous hybridization experiment। बहुत सिंपल सी टेक्निक यूज़ की थी दैट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट पॉलिनेशन और आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। सो ही डिड द सेम द आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। In artificial pollination, a three-step technique he has used to find out the desired result, find out the result for the analysis of the genetic researches. Three-step process. The first step process is the selection of the pure plant. Second step is hybridization between the pure plant, and third step is self pollination between the F1 hybrid. Selection of the pure plant is very important step because in this step only the Mendel has decided ki which character is pure one and which character is the hybrid one. This is very difficult task. So for that what Mendel did, after selecting out the character like the color of the flower, like shape of the pod, shape of the seed, like that, if any of the character we have already seen 7 pair of the character the Mendel has chosen, तो उसमें से किसी भी कैरेक्टर का प्योर फॉर्म को सिलेक्ट करना was the challenging task for the Mendel, because if pure form is not there so the result will always be affected. तो प्योर फॉर्म को, प्योर कैरेक्टर को सिलेक्ट करना was always a challenging task for the Mendel। तो Mendel ने उसके लिए क्या किया, कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन कराया, जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन कराते चले गए। और उसके बाद में जब उनको डिजायर्ड रिजल्ट मिला F1 हाइब्रिड के जैसा, तो उस समय उन्होंने उसको प्योर माना और उन प्योर सीड्स को कलेक्ट किया, उन प्योर प्लांट्स के फिर से रिग्रो कराया इन द गार्डन ओनली, और उन प्लांट से मिले हुए सीड्स का ग्रो कराने के बाद उनसे मिलने वाले स्टिग्मा और एंथर के बीच में पॉलिनेशन कराया। तो फर्स्ट स्टेप वाज देयर the selection of the pure plant. Pure plant means what? Homozygous we have already seen. So for this the Mendel raised the pure plants by the self pollination. This is not the process of one generation only. For many of the generation he was able to perform the self pollination again and again, और finally जब वो confirm हो गए कि these plants are pure plants with the pure characters, because recessive में दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी किसमें, डोमिनेंट कैरेक्टर्स में। तो फॉर दैट ही हैज़ परफॉर्म द कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन। अब जब प्योर प्लांट मिल गए, उसका स्टिग्मा रेडी है, उसका एंथर रेडी है, तो नाउ ही हैज़ परफॉर्म द हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन दोज प्योर प्लांट्स। और हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए व्हाट ही डिड, ही यूज द आर्टिफिशियल पॉलिनेशन मेथड। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन मेथड हम बेसिकली किस में परफॉर्म करते हैं, ये आपने देखा हुआ है। इफ द प्लांट इज unisexual then there is no issue, but the problem is there with the bisexual plant. So here in the case of pea plant, the plant is bisexual, so that time this is required to convert the bisexual flower into the unisexual flower. And to convert the bisexual flower into the unisexual flower, what he did, first of all he emasculated the flower। emasculated आप जानते हैं, emasculation का मतलब removal of the male reproductive part from the flower by plucking off, एंथर को काट के निकाल देना विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप और विद द हेल्प ऑफ अ सिजर। सो उन्होंने सबसे पहले इमेस्कुलेशन किया और एंथर को निकाल के बाहर किया फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। जब वो फ्लावर पूरी तरीके से यूनिसेक्सुअल हो गया, स्टिग्मेट फ्लावर हो गया, तो दैट टाइम ही कवर्ड आउट द
that time he covered out the complete flower. When Mendel recovered the stigmate flower by the emasculation, उसको उन्होंने कवर किया विद अ पॉली बैग सो दैट कि द अनवांटेड अनडिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन शुड नॉट बी देयर. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज बैगिंग. After recovering the pure stigmate flower, he collected out the dust of desired pollen grains and dusted the pollen grains over the stigma by removing the bags फ्रॉम द यूनिसेक्सुअल फ्लावर. अब जो स्प्रे करना था डस्ट का, पॉलन डस्ट का, तो उन्होंने दोनों तरीके से किया. समवेयर ही डस्टेड द डोमिनेंट कैरेक्टर्स ओवर द recessive character, or somewhere he dusted the recessive character over the dominant one. So this what the experiment, or this what the technique of the Mendel when he performed that artificial pollination. Then he find out some of the hybrid presented or hybrid produced there in the F1 generation. Now the hybridization process began with cell pollination in between these F1 hybrid, और cell pollination के बाद में उनको F2 generation मिला, and so on. He was continuing the F1 generation, F2 generation. So at all, or in all, we can say the complete technique that was adopted by Mendel for performing the hybridization experiment is a 3-step process. Selection of the parents, that should be the pure one. प्योर पेरेंट को सिलेक्ट करने के लिए उन्होंने लगातार सेल पॉलिनेशन से प्योर प्लांट्स को जनरेट कराया. देन हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन द प्योर प्लांट, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, इमैस्कुलेशन, बैगिंग का यूज़ किया. देन डस्टिंग ऑफ द डिजायर्ड पॉलन ग्रेन ओवर द डिजायर्ड स्टिग्मा. देन F1 हाइब्रिड्स आर बीइंग ऑब्टेन्ड. F1 हाइब्रिड्स के बीच में सेल पॉलिनेशन कराया. सेम प्रोसेस विल बी कंटिन्यूड फॉर F2 जनरेशन, F3 जनरेशन, एंड सो ऑन. डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट टाइटल जो देखने जा रहे हैं, दिस इज़ व्हाट कि हाउ ही वाज एबल टू एनालाइज द कॉन्सेप्ट, एनालाइज द रिजल्ट. सो उस रिजल्ट को एनालिसिस करने के लिए उन्होंने मैथमेटिकल अप्रोचेस का सहारा लिया. कई तरीके से उनको प्रोड्यूस किया, कई तरीके से उनको एक्सप्रेस करने की कोशिश की. तो मेथड ऑफ द क्रॉसेस वी आर जस्ट गोइंग टू सी. कई तरीके से क्रॉस रिजल्ट शो किए जाते हैं. जैसे अभी तक मैंने जो भी आपको क्रॉस रिजल्ट अपने प्रीवियस वीडियोज में बताया, दैट इज बेस्ड ऑन द गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्मेशन के बेसिस पे होता है, और फर्टिलाइजेशन अपन बताते हैं. यहाँ पे उन्होंने सिंस समटाइम the dihybrid process are there, trihybrid process are there, so at that time the gamete formation method is not very much applicable, क्योंकि वहाँ confusion होता है. तो on that situation the Mendel has adopted some more method, or the post Mendelian workers has adopted some more methods to explain out the trihybrid, tetrahybrid, dihybrid process. So we are just going to see कि which are the methods by which we can analyze the complete result of the Mendelian genetics or pattern of inheritance. So first method we are just going to see, this is very common that we are always using, that is Punnett square, or we are using the word checkerboard method. Checkerboard method का मतलब है जैसे चेस बोर्ड होता है, ब्लॉक्स बने होते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे चेकर बोर्ड का फॉर्मेशन किया जाता है. एंड ऑन दोज चेकर बोर्ड वी आर एक्सप्रेसिंग द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप. सो दिस इज व्हाट दैट इज कॉल्ड एज चेकर बोर्ड मेथड. पूरी तरीके से स्फेरिकल रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, और हर एक अरेंजमेंट के अंदर एक पर्टिकुलर जीनोटाइप और उसका फिनोटाइप डिफाइन होता है, एक्सप्रेस होता है. इसी को पुनेट स्क्वायर मेथड भी कहा जाता है, बिकॉज दैट मेथड वाज फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेड बाय द रेजिनॉल्ड सी पुनेट. चेकर बोर्ड मेथड वाज फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेड बाय द रेजिनॉल्ड सी पुनेट मेथड, पुनेट. सो दैट इज वाई पुनेट स्क्वायर मेथड. So it is a representation of the generations to analyze in form of the symbols of squares. Are you getting my point? जैसे मैंने बताया कि एक चेकर बोर्ड, चेस बोर्ड के जैसे होते हैं, स्क्वायर्स बने होते हैं, और हर एक स्क्वायर में जीनोटाइप और फिनोटाइप ऑफ द मैनी जनरेशंस आर बीइंग एक्सप्रेस्ड, और उसी को एनालिसिस किया जाता है कि विच वन इज हैविंग विच जीनोटाइप, विच फिनोटाइप विल बी देयर, कितने जीनोटाइप निकल के आए, कितनों फिनोटाइप निकल के आए, कौन सा होमोजाइगस था, कौन सा हेट्रोजाइगस था. सो दिस इज वेरी मच ईजियर टू कैलकुलेट इट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, मेल गैमेट्स. अब इसमें चेकर बोर्ड के कुछ लॉज होते हैं. मेल गैमेट्स ऑलवेज लाइज हॉरिजॉन्टली, इधर अपन मेल गैमेट्स को लेते हैं, एंड फीमेल गैमेट्स ऑलवेज लाइज वर्टिकली. सो मेल गैमेट्स को हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे और फीमेल गैमेट्स को हमेशा वर्टिकल एक्सिस पे. यहाँ पे उतना क्लियर नहीं होता, बट यू मस्ट रिमेंबर दिस इज द लॉ ऑफ द चेकर बोर्ड मेथड और द पुनेट स्क्वायर मेथड. तो ये कभी भी आपका नीट में आए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए कि किस एक्सेस पे डाला जाता है मेल को और किस एक्सेस पे फीमेल को, तो ऑलवेज रिमेंबर हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे मेल गैमेट को और फीमेल गैमेट को वर्टिकल एक्सेस पे डालते हैं.
अब फाइनली अगर इसको अपन डिफाइन करना चाहें तो हैंस इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अ क्रॉस। एक तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें सभी पॉसिबल जीनोटाइप को कैलकुलेट किया जाता है और उसी के बेसिस पे फिनोटाइप को डिफाइन किया जाता है। अपन एक एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ द पुनेट स्क्वायर मेथड इज बीइंग अप्लाइकेबल, कैसे चेकर बोर्ड बनाया जाता है। इवन दो फर्दर आल्सो व्हेन विल मूव ऑन टू द डाई हाइब्रिड क्रॉस, उस समय एक बार फिर से अपन बहुत डिटेल में इसको देखेंगे। सपोज करें कैरेक्टर लिया हाइट ऑफ द प्लांट। अब इस हाइट ऑफ प्लांट के दो ट्रेट होते हैं। हाइट ऑफ द प्लांट इज अ कैरेक्टर, टू ट्रेट्स आर अवेलेबल। द टॉल can be expressed with capital T and capital T. The dwarf can be expressed with the capital small t and small t. The dwarf can be expressed with the small t and small t. अब यहाँ पे अपन ऑब्जर्व करते हैं P1 जनरेशन लिया हुआ है। P1 जनरेशन में टॉल प्लांट द कैपिटल T, तो एक एक्सिस पे दो अलग अलग गैमेट बनेंगे, गैमेटोजेनेसिस होती है, तो ये हम पहले से जानते आ रहे हैं। वन गैमेट विल बी कैपिटल T, वन गैमेट विल बी कैपिटल T, तो ये दो अलग अलग बॉक्सेस के सामने आ जाएंगे। और जो ड्वार्फ होगा तो उसके भी दो गैमेट बनेंगे, स्मॉल टी और स्मॉल टी, इनके बीच में क्रॉस कराना है अपने को, तो दो गैमेट कैपिटल टी फ्रॉम वन पेरेंट वेदर इट इज़ मेल, और इधर स्मॉल टी फ्रॉम द फीमेल। अब क्रॉस कराना है तो ये स्मॉल टी है, इस स्मॉल टी का क्रॉस इन दोनों के साथ में, तो जब कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, when capital T and small t, here capital T मतलब this small t will be multiplied by these two. Once again this small t is there, so small t will multiplied with capital T, small t capital T, तो ये सारे के सारे कैसे होगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में आ गया, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल T स्मॉल t। और सारे के सारे हेट्रोजाइगस क्या होते हैं, हाइब्रिड्स, और हाइब्रिड्स आर ऑलवेज डोमिनेंट। तो यहाँ पे डोमिनेंट मिल गया, ऑल द F1 जनरेशन इज हाइब्रिड, और ये अपन ने देखा हुआ है हमेशा कि ऑल द F1s आर हाइब्रिड्स विद द डोमिनेंट फिनोटाइप। फिर हमने इन्हीं का सेल्फिंग कराया, सेल्फ क्रॉस कराया, तो सेल्फ क्रॉस कराने में दो टॉल मिले थे, बोथ द टॉल आर हेट्रोजाइगस, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। अब कैपिटल T और स्मॉल t को अगर अपन लेते हैं तो इस एक्सिस पे एक कैपिटल T यहाँ, दूसरा स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, सेम अपन वही करेंगे, द कैपिटल T कैपिटल T, this capital T, small t capital T, and finally the small t। रिजल्ट सेम वही आएगा, टॉल और ड्वार्फ का रेशियो आएगा 75%। देखें 1 2 3 मतलब 25 का रेशियो निकालते हैं तो 75% टॉल प्लांट है एंड 25% ड्वार्फ है। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1। जीनोटाइप में हमने देखा 3 डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप्स आर अवेलेबल हियर, कैपिटल T स्मॉल t एंड स्मॉल t स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t स्मॉल t। सो बहुत ईजी हो जाता है इससे पता लगाना। एक बॉक्स दिया तो दैट इज 25% ऑफ द कैपिटल T, 25% ऑफ स्मॉल t 25% ले लिया इधर, और दो बॉक्स हैं 25 + 25 50% हो जाएगा। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1:2:1 ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रेसेसिव। सिंस मैंडल वॉज द स्कॉलर ऑफ मैथमेटिक्स, और उन्होंने मैथमेटिक्स के नॉलेज का अच्छा खासा यूज़ किया था टू एक्सप्लेन द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, टू एक्सप्लेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरेंस ऑफ द कैरेक्टर इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। तो इस क्रॉस से उन्होंने देखा कि जब सेल्फिंग कराते हैं बिटवीन द टू हाइब्रिड्स तो दोनों T और T हैव इक्वल चांसेस टू कंट्रीब्यूट इनटू द न्यू जीनोटाइप। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब गैमेटोजेनेसिस होगा सो कैपिटल T विल आइसोलेट फ्रॉम द स्मॉल t, और कैपिटल T और स्मॉल t दोनों के एक दूसरे से फ्यूज होने के चांसेस 50-50 हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, दिस इज नॉट नेसेसरी या रिक्वायर्ड कि ऑलवेज कैपिटल T विल फ्यूज विद द कैपिटल T और कैपिटल T विल ऑलवेज फ्यूज विद द स्मॉल t। दोनों एक दूसरे से फ्री हैं, चांसेस हैं, प्रोबेबल चांसेस हैं कौन किससे जाके फ्यूज होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, और जो फ्यूजन होगा उसके बेसिस पे रिजल्ट वहाँ पे दिखाई देंगे। बट द कंप्लीट कॉन्सेप्ट इज ऑफ द प्रोबेबिलिटी। तो उन्होंने ये माना कि अगर रैंडम फर्टिलाइजेशन होता है तो उस कंडीशन में रिजल्ट क्या आते हैं, कैपिटल T स्मॉल t एंड स्मॉल t। अब इसी को उन्होंने एक्सप्लेन किया था 1/4 प्लांट होंगे, 1/4 प्लांट पॉपुलेशन इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे किया। ऐसा नहीं था कि ही हैज जस्ट गिवन अ प्रोबेबिलिटी, व्हाट द ऑब्जर्वेशन ही मेड, सपोज 1000 प्लांट ही रिकवर्ड आफ्टर द सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ द F1 hybrid, he find out 1/4 of those plants were having the pure homozygous dominant nature,
half of the plants were having the heterozygous dominant of the nature, and 1/4 once again will have the प्योर होमोजाइगस रेसेसिव। तो ड्यू टू द, और ये क्यों पॉसिबल हुआ, ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ वन ट्रेट ऑन अनदर, F1 हाइब्रिड्स आर ऑलवेज टॉल, 100% टॉल। F1 जनरेशन में किसी भी तरीके से कैरेक्टर का मिक्सचर नहीं शो हुआ, वहाँ पे कैरेक्टर तो टॉल ही दिखाई दिया, एक ही कैरेक्टर दिखाई दिया, बट वो कैसे हो गए, अब हाइब्रिड हो गए थे। हाइब्रिड बनने के पीछे रीज़न क्या था, इन P1 जनरेशन वी हैव टेकन 2 प्योर प्लांट्स, दोनों प्योर प्लांट्स में से एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी निकल के आया, तो जब दोनों के बीच में क्रॉस होगा तो वहाँ पे 50-50 जाएंगे, कॉम्बिनेशन वही बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी का। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन बनने में कोई दूसरा ऑप्शन बन ही नहीं सकता अलॉन्ग विद द हेट्रोजाइगस कंडीशन और हाइब्रिड कंडीशन, तो इसलिए वहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं आया। ऑल द प्लांट्स वर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। क्यों? क्योंकि कैपिटल टी इज हैविंग कैपेसिटी टू सप्रेस द इफेक्ट ऑफ स्मॉल टी। सो F1 हाइब्रिड में सारे के सारे 100% टॉल हुए। F2 जनरेशन में ये रेशियो डिफर हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज बोथ द गैमेट्स, बोथ द जीन्स आर फ्री टू फ्यूज विद ईच अदर, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी दिखाई दी। F2 जनरेशन में बिकॉज डोमिनेंट कैरेक्टर ज़्यादा डोमिनेंट हो गई और वो सप्रेस करता है द जीन स्मॉल टी, तो इसलिए 3/4 ऑफ द प्लांट्स वर टॉल एंड ओनली 1/4 ऑफ द प्लांट्स वर द ड्वार्फ। तो इसलिए रेशियो उन्होंने क्या बताया, जो भी प्लांट बनेंगे, सपोज 100 प्लांट्स हैज बीन रिकवर्ड, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1/4 प्लांट आर प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट, half of the plants of those 100 plants are heterozygous dominant, and 1/4 plant of those 100 plant population is the homozygous recessive। मैथमेटिक्स के स्कॉलर थे तो वो इतने पे नहीं रुके, उन्होंने इस पूरे के पूरे रेशियो को, इस पूरे के पूरे कैलकुलेशन को बाइनोमियल एक्सप्रेशन में भी एक्सप्रेस किया और उसके थ्रू भी प्रूव करने की कोशिश की। बाइनोमियल एक्सप्रेशन माय डियर स्टूडेंट आप बहुत अच्छे से जानते हैं, दिस इज द बेसिक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट, ax + by का होल स्क्वायर। अपन ax + by का होल स्क्वायर लगाते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b² का फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ पे a मान लेते हैं, एक एक्सप्रेशन a है तो कैपिटल T एंड सेकेंड एक्सप्रेशन इज स्मॉल t। अगर अब उसी तरीके से अपन लगाते हैं तो 1/2 t एंड 1/2 स्मॉल t का होल स्क्वायर लगाएंगे, दोनों फैक्टर्स, दोनों का फैक्टराइजेशन होगा और फाइनली वही रिजल्ट निकल के आता है इसमें, द 1/4 ऑफ द कैपिटल T 1/2 कैपिटल T स्मॉल t, 1/4 कैपिटल T स्मॉल t। तो यहाँ पे हुआ क्या, 25% homozygous dominant, 50% heterozygous dominant, and 25% homozygous recessive. That was the mathematical explanation of the monohybrid cross। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ डिड द मेंडल एबल टू एक्सप्लेन मैथमेटिकली द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो ये तरीका होगा मेंडल के एक्सप्लेनेशन को समझाने का, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझाने का। सो इज इट क्लियर टू यू ऑल, किस तरीके से उन्होंने समझाया था। समझाने के लिए हमको हमेशा कौन सा लेना, बाइनोमियल एक्सप्रेशन लेना, ax + by। तो a क्या लिया अपन ने, कैपिटल T, b क्या लिया हुआ है, स्मॉल t लिया हुआ है। ओके, इज इट क्लियर टू यू ऑल। सेकेंड वे टू कैलकुलेट आउट द जीनोटाइप या एक्सप्रेशन देने का, लेकिन ये थोड़ी सी टफ मेथड होती है, बस दिस मेथड इज यूजफुल इन फाइंडिंग आउट द कंपोजिशन ऑफ फैक्टर इनसाइड द गैमेट। ये पता लगाना होता है कि कितने फैक्टर होंगे, कितने टाइप के जीनोटाइप बन रहे होंगे, कितने तरीके के गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा होगा, तो उस समय दिस मेथड इज वेरी मच यूजफुल। दैट मेथड इज कॉल्ड एज फोर्क लाइन मेथड। फोर्क का फॉर्मेशन होता है, कंटिन्यूस फोर्क्स बनती हैं और उस फोर्क के बेसिस पे हम ये पता लगा पाते हैं ईजिली कि हाउ मैनी टाइप ऑफ गैमेट्स आर जीनोटाइप इज बीइंग पॉसिबल देयर आर। और यदि गैमेट्स बन जाते हैं तो गैमेट्स का मल्टीप्लाई करके, क्रॉस करा के हमें बता सकते हैं कितने फिनोटाइप का फॉर्मेशन होता है। सो जस्ट टेक अ लुक ऑन दैट। सपोज करें एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस वी आर नॉट टेकिंग क्योंकि बहुत ईजी होता है, वहाँ पे 2 ही गैमेट बन रहे हैं तो 2 2 नहीं 4 टोटल फिनोटाइप बनते हैं। सो डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब 2 कैरेक्टर्स ऑल टुगेदर, नॉट 2 ट्रेट्स, 2 कैरेक्टर्स ऑल टुगेदर। तो 2 कैरेक्टर मान लिया, कैरेक्टर ए और बी हैं, तो दोनों की हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या बनेगी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो इससे टोटल 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनेंगे। नॉर्मली मैं आपको बताऊं तो जैसे ए का बी के साथ में मिक्सचर हो गया, ए का बी के साथ में मिक्सचर हो गया, कैपिटल ए और कैपिटल बी हो गया, स्मॉल ए कैपिटल बी हो गया,
कैपिटल ए स्मॉल बी हो गया और स्मॉल ए स्मॉल बी हो गया, ये 4 तरीके के बनेंगे। लेकिन इसके लिए क्या होता है, गलतियां होने के बराबर चांसेस होते हैं। सो टू अवॉइड सच काइंड ऑफ द मिस्टेक, फोर्क लाइन मेथड इज अ वंडरफुल मेथड टू फाइंड आउट ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स। सो जस्ट टेक अ लुक कि कैसे अपन फोर्क लाइन बनाते हैं। तो अब देखिए, हेट्रोजाइगस कंडीशन में 2 कॉम्बिनेशन बन रहे थे, पहले कैरेक्टर का कैपिटल ए स्मॉल ए और दूसरे कैरेक्टर का कैपिटल बी और स्मॉल बी। अब इसको किस तरीके से यूज करते हैं, तो पहला कॉम्बिनेशन था कैपिटल ए लिया, पहला कैरेक्टर का कैपिटल ए पहला कैरेक्टर, और फिर उसका क्रॉस कराएंगे दोनों के साथ में, तो कैपिटल बी स्मॉल बी बना। अब क्रॉस कराए तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी, ये 2 कॉम्बिनेशन। दूसरा कैरेक्टर क्या था, स्मॉल ए, तो स्मॉल ए का क्रॉस फिर उन्हीं दोनों के साथ में कैपिटल बी, मतलब पहली लाइन में पहला कैरेक्टर, दूसरी लाइन में दूसरा कैरेक्टर, अगर और ऐसे अपन जाते हैं तो तीसरी लाइन में तीसरा, चौथी लाइन में चौथा कैरेक्टर, इस तरीके से अपन उसका यूज करेंगे। सो फर्स्ट लाइन फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट 2 लेटर्स आर देयर ऑलवेज, तो बी और बी के साथ में ए बी बना और ए बी बना। सेकेंड लाइन में फिर वही किया अपन ने, ए और बी लिया, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, तो ए बी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। तो टोटल 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने, जैसा मैंने पहले बताया था 4 टाइप के गैमेट्स बन सकते हैं इन डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब आपके पास में पूरे गैमेट यहाँ पे निकल के चले आए हैं, सभी का रेशियो क्या होगा 25% 25% 25%। अब थोड़ा सा और डिफिकल्ट सोचते हैं इन ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, जब एक तीसरा कैरेक्टर भी आ गया, अभी हमने ए बी लिया था, अब ए बी सी हो गया। आई एम जस्ट ओनली एक्सप्लेनिंग, आप इसको कितने भी कैरेक्टर्स के साथ में कर सकते हैं। सो ए बी और सी लिया, तो ए बी और सी के लिए नॉर्मली मैंने आपको बताया था एक फार्मूला इन द प्रीवियस लेक्चर कि जब आपको पॉसिबल गैमेट्स या पॉसिबल जीनोटाइप निकालना हो तो अपने को क्या लगाना होता है, 2 to the power of n लगाना होता है। तो 2 to the power of n, तो 2 लगाया, n का मतलब नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, तो कितने हेट्रोजाइगस हो गए 1 2 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कभी कभार ये क्वेश्चन आते हैं नीट में कि हाउ मेनी पॉसिबल कंपोजिशन और हाउ मेनी पॉसिबल जीनोटाइप्स आर बीइंग मेड। अब वो दिया होता है पूरा का पूरा, जैसे ए बी बी सी सी इस तरीके से दिया रहता है, तो उस कंडीशन में दिस इज वेरी मच डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि हाउ मेनी टाइप ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप इज पॉसिबल। तो यहाँ ध्यान रखना है एन का मतलब नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस है, नंबर ऑफ होमोजाइगस से लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे अगर क्या होता है कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी होता, तो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस क्या होता है 1 होता, तो उस कंडीशन में फिर एक टाइप का ही गैमेट बनता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ए बी और कैपिटल सी और स्मॉल सी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ ध्यान रखना एन का मतलब नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस है, ना कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है। 2-3 तरीके के हेट्रोजाइगस बन रहे हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज वाई आई एम फोकसिंग ऑन दैट। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, 3 तरीके के हेट्रोजाइगस हैं, तो 2 to the power of n लगाएंगे, 3 हेट्रोजाइगस आ गए तो कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, 8 टाइप्स ऑफ गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस। अब लेते हैं एक एक करके अपन लेते हैं, तो पहली लाइन में पहला कैरेक्टर, दूसरी लाइन में दूसरा कैरेक्टर और तीसरी लाइन में तीसरा कैरेक्टर, ठीक है। फर्स्ट लाइन ए सेकेंड लाइन बी उसी के साथ में होगा, एंड थर्ड लाइन विल हैव टू बी सी। तो ए के साथ में बी, ए के साथ में बी, अब इन बी के साथ में तीसरी लाइन आ जाएगी सी की, ठीक है, समझ में आ रहा है, बिकॉज ट्राई हाइब्रिड क्रॉस इज देयर। अब कैरेक्टर कैसे बना, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ए बी सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, ए स्मॉल बी कैपिटल सी, फिर यहाँ पे वो इसी तरीके से कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए बी कैपिटल सी, लाइक दैट। तो टोटल पॉसिबल कंपोजिशन कितने हो गए यहाँ पे जीनोटाइप के, ए बी सी कैपिटल ए बी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, लाइक दैट। टोटल 8 2 to the power of n यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ऐसे ही टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस में निकालना हो तो आपको क्या करना होगा, टेट्रा हाइब्रिड में हाइब्रिड की बात करते हैं अपन, हम यहाँ पे होमोजाइगस की बात नहीं करते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, एन का मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड्स प्रेजेंट, यहाँ पे 4 हाइब्रिड हैं, तो आपको क्या लगाना होगा 2 to the power of n, मतलब कितने 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, मीन्स 16 टाइप ऑफ जीनोटाइप और गैमेट्स आर पॉसिबल। मैं केवल एक का बना के बता रहा हूँ और करना वही है आपको जिस तरीके से आपने यहाँ पे किया था, ए तो पहली लाइन, दूसरी बी की, तीसरी लाइन सी की और चौथी लाइन इनके साथ में डी की आएगी, ठीक है। मैं केवल एक का ले रहा हूँ, स्मॉल ए का आप खुद कर सकते हैं। यहाँ पे कैपिटल ए बी के साथ में सी और सी के साथ में अब डी का क्रॉस होगा। अगर पेंटा हाइब्रिड होता तो अब डी के साथ में ई जुड़ जाता,
ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेक्सा हाइब्रिड होता है तो उस ई के साथ में एफ जुड़ जाता है इस तरीके से। तो अब कैसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जैसे ए बी सी डी, ए बी सी डी, दूसरा क्या हो जाएगा ए बी सी स्मॉल डी, तीसरा ए बी स्मॉल सी कैपिटल डी, चौथा ए बी सी स्मॉल डी, लाइक दैट। ये चार तो यहीं से आ गए, फिर चार इधर से आ जाएंगे, 8 कॉम्बिनेशन यहाँ पे बने और 8 स्मॉल ए से बन जाएंगे, तो 8 + 8 16 हो जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि हाउ मेनी टाइप। या कभी कभार क्वेश्चन आता है, डिटेल क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा पॉसिबल जीनोटाइप नहीं है, कौन सा पॉसिबल गैमेटिक कॉम्बिनेशन नहीं है। तो उस समय आपको फोर्क लाइन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट, क्लू पॉइंट है, याद रखेंगे आप लोग। गैमेट्स या टाइप्स ऑफ गैमेट या फिनोटाइप को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया 2 n। n का मतलब नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, नंबर ऑफ हाइब्रिड्स। नंबर ऑफ जीनोटाइप पता करना है तो 3 n, मतलब जो भी आपने n लगाया 3 हाइब्रिड हैं तो 3 3 जा 9, जैसे 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27। नंबर ऑफ जाइगोट बाय सेल्फिंग बताना है तो 4 n। n का मतलब हमेशा नंबर ऑफ हाइब्रिड। इज इट क्लियर? जैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा कितने बने थे, 4 बने थे, तो 4 हाइब्रिड बने मीन्स व्हाट 4 n। सो 4 4 जा 16 प्लांट बनेंगे, 16 टाइप के जाइगोट बनेंगे। अगर ट्राई हाइब्रिड में जाएंगे तो 8 बने थे तो 8 8 जा 64 हो जाएगा, लाइक दैट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क। हम ये पहले भी देख चुके हैं कि मेंडल वॉज फेल, मेंडल का काम उनके जीते जी रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया। उनके मरने के बाद में आफ्टर हिज डेथ सम ऑफ द वर्कर्स स्टार्टेड वर्किंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द इनहेरिटेंस, और उस समय उनके काम को पहचान मिली। तो तीनों साइंटिस्ट के नाम आपको रट के रखना है हमेशा। कार्ल लॉरेंस जर्मनी के थे, इन्होंने मेज के ऊपर काम किया। जितने पॉइंट बता रहा हूँ उतने पॉइंट बहुत हैं, इतने ही पॉइंट आपको पूछे जाएंगे, तो यू मस्ट बी रेडी विद दैट। कार्ल लॉरेंस इज फ्रॉम द जर्मनी, सारे पूछे जाते हैं। ही वर्कड ऑन द मेज प्लांट। ह्यूगो डे व्रीज हॉलैंड के थे, इन्होंने इवनिंग प्रिमरोज के ऊपर काम किया था, इवनिंग प्रिमरोज प्लांट के ऊपर काम किया था ह्यूगो डे व्रीज ने। म्यूटेशन थ्योरी प्रेजेंट की थी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, आगे अपन ये समझेंगे। वॉन सेरमार्क, ही वाज फ्रॉम द ऑस्ट्रिया एंड ही वर्कड ऑन द डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट, और बाद में उन्होंने अपने बेसिस पे रिजल्ट्स प्रेजेंट किए थे। मेंडल के नॉन रिकग्निशन के अगर रीज़न पूछे जाते हैं तो उस समय प्योर कम्युनिकेशन मीन्स थे, दैट वाज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, क्योंकि पुअर कम्युनिकेशन मीन के कारण ये बहुत मुश्किल था कि उस समय होने वाले किसी काम को वाइडली पब्लिश करा पाना, वाइडली उसको वर्ल्ड वाइड एक्सप्रेशन दिला पाना, उसको वर्ल्ड वाइड पहुंचा पाना। दिस वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क। दूसरा, हमने पहले भी देखा था कि मेंडल वाज एबल टू एक्सप्लेन द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस परफेक्टली, बट ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि हाउ दिस फैक्टर्स और हाउ दिस कैरेक्टर्स आर मूविंग इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। और उसके पीछे रीजन ये था कि उस समय तक जीन्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इवन दो मेंडल हैज यूज्ड द वर्ड फैक्टर्स, बट ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द प्रॉपर मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट ऑफ द फैक्टर्स सिंस द पुअर नॉलेज ऑफ द जेनेटिक्स एट दैट टाइम। फिर मेंडल का एक मैथमेटिशियन होना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के आया, बिकॉज एट दैट टाइम दिस वाज वेरी मच डिफिकल्ट, या दिस वाज वेरी मच डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट दैट अ मैथमेटिशियन कैन वर्क इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी में वो मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करेगा, ये लोगों के गले से बात उतर नहीं रही थी। तो उस समय इसलिए उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं मिला, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं मिला। एंड फाइनली द मेंडल वॉज फेल टू प्रोवाइड एनी ऑफ द फिजिकल प्रूफ टू एक्सप्लेन द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। उनके पास में कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था सो दैट कि ही कुड एक्सप्लेन हिज पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, 2-3 मोर नोट्स आर देयर जो इंपॉर्टेंट है। जीनोम और जीन पूल तो हमेशा हम यूज़ करेंगे इन द फर्दर इन द चैप्टर। Genome, a complete set of the gene present in the haploid set of the chromosome which inherited as a unit from the parent is called as genome. जीनोम बहुत कंफ्यूजिंग टर्म है, बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं, स्टूडेंट्स ऑलवेज गेटिंग कंफ्यूज विद द जीनोम। सो रिमेंबर, वॉट एवर द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज गोइंग टू बी शिफ्टेड फ्रॉम पेरेंट टू द डॉटर, पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज जीनोम। अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस आर हैविंग 46 क्रोमोसोम और 46 में 23 का पेयर बनता है। सो 23 chromosomes will be received from one parent, so that is called as genome. So whatever the genes are present in those 23 chromosomes which an organism received from one parent, that is called as genome.
तो नॉर्मली जीनोम कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नॉर्मली जीनोम हैप्लॉइड होता है। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है कि किस तरीके का जीनोम बनेगा, तो ऑलवेज जीनोम इज हैप्लॉइड। बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ द हैप्लॉइड जीनोम्स कम टुगेदर बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, और उस समय दो जीनोम एक साथ मिल जाते हैं, तो वो कैसा जीनोम हो जाएगा, डिप्लॉइड। हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन में हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड इज इक्वल टू डिप्लॉइड। तो दो जीनोम आ जाते हैं हमारे पास में, हमारी सेल में जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, में दो तरीके के जीनोम है, वन इज फ्रॉम मैटरनल साइड एंड वन इज फ्रॉम द पैटर्नल साइड। और यदि दो से ज़्यादा जीनोम आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीप्लॉइड। तो ये क्लियर हुआ, जीनोम का मतलब अ कंप्लीट सेट ऑफ जीन रिसीव्ड फ्रॉम द हैप्लॉइड पेरेंट, रिसीव फ्रॉम द पेरेंट और ओनली वन पेरेंट और हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम में जो भी जीन सेट रहेगा जो रिसीव होता है टू द ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, जीन पूल ये एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जीनोम का मतलब सिंगल पेरेंट्स के हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम से जो भी जीन मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज जीनोम। अब जीन पूल में ऑल द जीनोटाइप्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इन एन इनब्रीडिंग पॉपुलेशन मेक द जीन पूल। जीन पूल एक ब्रॉड टर्म है, जितने भी जीनोटाइप है किसी भी इनब्रीडिंग पॉपुलेशन के, वो उसका जीन पूल बनाते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट के लिए, प्रॉपरली नीट के लिए, दिस इज SBE, स्टार्च ब्रेकिंग एंजाइम। मेंडल ने दो तरीके के सीड ऑब्जर्व किए थे, वन इज रिंकल्ड सीड एंड वन इज राउंडेड सीड। राउंडेड सीड और रिंकल्ड सीड का कॉन्सेप्ट ये है कि राउंडेड सीड में मोर अमाउंट ऑफ स्टार्च इज देयर वाइल द रिंकल्ड सीड इज हैविंग मोर अमाउंट ऑफ द फ्री शुगर प्रेजेंट देयर। ठीक है, उसके पीछे उन्होंने पता लगाया और रिसेंट रिसर्चेस जो हुए, बाद के रिसर्चेस हुए, उसमें पता चला द राउंड सीड इज गोइंग टू कन्वर्ट इन फॉर्म ऑफ रिंकल्ड सीड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज SBE, स्टार्च ब्रेकिंग एंजाइम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नीट एग्जामिनेशन। SBE, स्टार्च ब्रेकिंग एंजाइम इज देयर, दैट स्टार्च ब्रेकिंग एंजाइम is responsible for conversion of rounded seed into the wrinkled seed, और इसी के कारण wrinkled seed will have more amount of the sugar content in comparison to the rounded seed. Okay, so this is all about for today's lecture. Now we are all set to undergo in the Mendel's law of inheritance. So from next lecture I will start the Mendelian principle of inheritance, that is Mendelism, Mendel's के law of inheritance अपन देखेंगे. So till the time, thank you for being with me. Thank you.